Good morning, all of you. Today we will discuss about the respiration and their different types. What do you mean by the term respiration? But before going in detail about the respiration, do you ever been wonder how the different organisms convert food into energy? Means it is not a very simple process. It is not a single step process. It is a stepwise process. Means it is a stepwise oxidation process during which the complex food, the non-diffusible food, get converted into the diffusible one, and in presence of oxygen there occurs the complete breakdown of the food, and there occurs the release of energy in the form of the ATP. Energy release ho jati and gets stored in the form of ATP, which is further required for the different metabolic activities, and that whole process is called as the respiration. So what is respiration? Respiration is the stepwise oxidation of the complex organic molecules which release in the energy in the form of ATP, which is required for the different metabolic activities, is called as the respiration. The respiration process takes place in many steps. Means the first part is the external respiration, or you can say it as a breathing in case of the animals. The process during which there occurs only the exchange of gases in between the organism and the external environment, that called the external respiration. You can see in that particular diagram there occurs inhalation when a person take the O2, and there occurs the expansion of the lungs, but during the exhalation it releases the CO2 gas into the environment, and there occurs the contraction of the lungs. Means the external respiration or the breathing is the process during which there occurs the exchange of gases between the organism and the external environment, that called the external respiration, or you can say it as a breathing. Similarly, that respiration process also occurs in the plants. So in the plants, that particular process can take place only through the surface of the leaves where the stomata are present. The stomata may be in the open form or in the closed form. So when stomata are in the open form, then there occurs the exchange of gases through these stomata, which are present on the surface of the leaf, and there occurs the exchange of gases. The plants synthesize their food and release the O2 and release the O2 through these stomata, and that particular oxygen we take it through the breathing process, through the external respiration process, and there occurs the exchange of gases. That exchange of gases in between the external environment and the organism, that organism may be the plant, they may be the animal, that called as the external respiration, or you can say the breathing. So what is cellular respiration? Cellular respiration means the process which through which we oxidize the food and get the energy. एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है थ्रू द स्टेप वाइज प्रोसेस बाय द या इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है, इंजाइमेटिक एक्शन होता है. इट इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस. ये प्रोसेस उतनी सिंपल नहीं है जितना हमें लगता है कि अब फूड का ऑक्सीडेशन हो गया और हमें एनर्जी मिल गई. नो, this is a very complex process. So the biological process which occurs in the cell and it oxidizes the food to obtain the energy in the form of ATP is called as the cellular respiration, or you in other words we can say that the process in which the energy is released due to the breakdown of different food products that we take through the balanced diet, that may be the carbohydrates, that may be the लिपिड्स. और जो आपके लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनका फिर सबसे पहले क्या होता है, डाइजेशन के द्वारा जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फूड प्रोडक्ट्स. देन these simple food products enter into the cell, and then in presence the oxidation of that food product occurs and we got the energy. और फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी, एंड दैट कॉल्ड एज द सेलुलर रेस्पिरेशन. उसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? द प्रोसेस इन विच द एनर्जी रिलीजेस by the breakdown of the glucose and other food molecules in presence of the oxygen is called as the cellular respiration. And these processes, that is the cellular respiration, takes place in presence of various enzymes, and these enzymes act as the biocatalyst which increase the rate of these processes, and thus we can obtain the energy in a very simple way in presence of the enzymes, क्योंकि वो rate of reaction को क्या कर देते हैं, increase.
और जो एनर्जी हमें मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जैसे कि इन प्रोसेसेस के दौरान आप देख पा रहे हैं कि जो पर्सन है वो क्या करता है, देखो इट विल टेक द फूड, सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं, इट विल टेक द फूड वेयर अकर्स द डाइजेशन, मींस कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फूड एंड देन इट एंटर इनटू द सेल। और आपको इधर दिख रहा है एक्सटर्नल प्रोसेस, जिस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन अपने इनटेक की आपकी ब्रीदिंग के द्वारा, फिर वो ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंच गई, देखो ब्लड वेसल्स, जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफरेंट वेज से हो सकता है। इट मे टेक्स प्लेस थ्रू द हीमोग्लोबिन, मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। फिर आपने ब्लड वेसल्स जो दिख रहे कैपिलरीज, उसके थ्रू बोलो कौन गया, आपका ब्लड है इसके अंदर, और फिर उसने किसको पिकअप किया, देखो ऑक्सीजन को। फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया और ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंच गई, हमारी सेल तक। सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो वहीं पर कौन पहुंच गया, आप फोर्थ डायग्राम में देख पाएंगे, देखो ऑक्सीजन का इंटेक, न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 रिलीज, एटीपी भी आपकी सिंथेसाइज हो गई, वाटर भी रिलीज हुआ। तो इस टाइप से आपका ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, के किस तरह से सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेम प्रोसेस हमने बताई ये आपके प्लांट्स के अंदर भी तो चलती है। द प्लांट्स ऑब्टेन, प्लांट्स क्या करते हैं, द प्लांट ऑब्टेन्स द वाटर फ्रॉम द water vapors from the environment, or you can say the water from the earth, and the CO2 from the environment, sunlight from the environment, and they return the oxygen into it through the photosynthesis process, और जिससे हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया कि सेलुलर रेस्पिरेशन आखिर है क्या, वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये कैसी प्रोसेस होती है जो सेल के अंदर चलती है। सेल के अंदर भी फूड पहुंचा कैसे, जब फूड का डाइजेशन हुआ था, मीन्स आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड था सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ, तभी तो वो सेल तक एंटर कर पाया। और सेल में एंटर करने के बाद ऑक्सीजन पहुंची वहां पे, सेल के अंदर कैसे पहुंची, आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर वो ऑक्सीजन आपकी सेल तक पहुंच गई। और फिर वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, उस फूड का, उन न्यूट्रिएंट्स का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और फिर हमें जो फूड के अंदर जो एनर्जी थी, जिसे फूड एनर्जी कहते हैं, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, कौन सी एनर्जी में, एटीपी एनर्जी के अंदर, उसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह देते हैं। और जो एटीपी हमें मिलती है यहाँ पे, जो सेल के अंदर आपकी जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके जो स्टोर हो जाती है, विच इज फर्दर रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो जो ये प्रोसेस है बाय विच द सेल ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, डिपेंडिंग किस बेसिस के ऊपर के वेदर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और नॉट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। मीन्स अगर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है तो आपके प्रोसेस के जो फूड है उससे हमें एनर्जी, उसका जो ब्रेकडाउन होगा वो डिफरेंट पाथवेज से होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन्वायरमेंट के अंदर तो उसका ब्रेकडाउन डिफरेंट टाइप से होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है लेकिन उस ऑक्सीजन को आपकी सेल यूटिलाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही, द सेल यूटिलाइज द ऑक्सीजन, देन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर हमारी जो सेल है वो यूटिलाइज ना कर पाए, क्या ना कर पाए बोलो, यूटिलाइज ना कर पाए ऑक्सीजन को, देन द प्रोसेस कॉल्ड एज द एनएरोबिक, मींस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर फूड का ब्रेकडाउन होता है टू गेट द एनर्जी, देन इट इज कॉल्ड एज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड का ब्रेकडाउन होता है टू गेट द एनर्जी, देन इट इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसे आप एरोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। जैसे आपने देखा जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, राइट साइड में आपको एक पर्सन दिख रहा है जो हैवी एक्सरसाइज करता है। तो जब ये हैवी एक्सरसाइज करेगा तो जितनी उसको जरूरत है एनर्जी की, जितनी फास्ट उसको ऑक्सीजन इनटेक चाहिए उतनी फास्ट इनटेक उसको नहीं मिल पाएगी। तो अब उसकी मसल्स हैं, जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। क्योंकि जो विग्रस एक्सरसाइज की जाती है तो उसके दौरान आपके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन द मसल्स एंड दस देयर अकर्स द प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड आपके दोबारा से हम आराम से रेस्ट करते हैं तो दोबारा से हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, तो लैक्टिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती ही नहीं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है जब हम विग्रस एक्सरसाइज कर ले तो उसके दौरान हमारा ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाता है, फिर मसल्स के अंदर चलती है आपकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो भी कौन सी, एनएरोबिक, कुछ समय के लिए एनएरोबिक, फिर हम रेस्ट करते हैं तो दोबारा से वो ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है और फिर दोबारा से एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है।
तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आखिर डिफरेंस क्या है? जैसे हम पहले ही आपको बता चुके हैं, एरोबिक के अंदर एरो मीन्स एयर, एनारोबिक में एन का मतलब नॉट, एरो का मतलब एयर, नो एयर मीन्स एयर की एब्सेंस में, एरोबिक का मतलब एयर की प्रेजेंस के अंदर। तो मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन कौन हुई? द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, and the process which takes place in the complete absence of the oxygen is called as the anaerobic respiration. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, what it causes, it causes the complete oxidation of the organic substrate जो हम फूड लेते हैं, whether in the form of the lipids or in the form of carbohydrates, जो फर्दर जब डाइजेशन के दौरान जो ये कॉम्प्लेक्स फूड है इसका ब्रेकडाउन होकर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स से मान लीजिए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, आपके जो लिपिड्स हैं उनका ब्रेकडाउन हुआ, ऐसे प्रोटीन्स का प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, एंड सो ऑन मीन सिंपलर जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तभी वो डिफ्यूज हो पाता है सेल के अंदर, और तभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो पाएगा। तो मीन्स ऑक्सीजन है तो क्या होगा, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का, और अगर ऑक्सीजन नहीं है मीन्स द एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर अकर्स द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ड्यू टू द limited or no supply of the oxygen. That aerobic respiration, point number 3, the aerobic respiration, it occurs mainly in the higher organisms, that is the plant, in the animals, but the anaerobic respiration generally takes place in the lower organisms like the bacteria, fungi, and if it takes place in the higher animals then it takes place under some limited conditions, means when there is the less supply of the oxygen as compared to their consumption. जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए अगर सप्लाई उससे कम होती है तो उस वक्त भी आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन चल सकती है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे हमने बताया था जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, तो जितनी इनटेक हमारी ऑक्सीजन की होनी चाहिए उतनी होती नहीं, एक्सरसाइज हमने ज्यादा फास्ट कर दी तो मसल्स के अंदर इन क्या हो जाती है, आपकी ऑक्सीजन की सफिशिएंसी नहीं रहती, वो इनसफिशिएंट हो जाती है, और जिसकी वजह से मसल्स के अंदर चलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो प्रोसेस चली है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, क्योंकि आपकी कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या प्रोसेस चलेगी, C6H12O6 आमतौर पे जो फूड है उसको हम ग्लूकोज की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो C6H12O6 प्लस में क्या मिली, ऑक्सीजन, उसका ब्रेकडाउन हुआ, हमें एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ ATP, और साइड प्रोडक्ट आपके क्या क्या बन जाते हैं, CO2 प्लस में H2O। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो आपके फूड हमने वही लिया C6H12O6, फिर जब उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द इथाइल अल्कोहल एज इन द यीस्ट, एंड इट कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड एज इन द मसल्स ड्यूरिंग द विग्रस एक्सरसाइज। तो जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं उसके दौरान, उसके बाद जो ये आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन आखिर ये चलती कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द यूकैरियोट्स एंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोट्स, while the anaerobic respiration it takes place in the cytoplasm, ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, देखो ये ग्लूकोज आया, ये ग्लूकोज क्या है, ये आपका सिंपल फूड था, और देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, देखो फर्स्ट स्टेप जो होती है ये पायरवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो प्रोसेस चलती है ये पहली एक ऐसी प्रोसेस है जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। मैं चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, जो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज कॉमन in the aerobic respiration or in the anaerobic respiration. The first step is common, means during which the simple food that is the glucose get converted into the pyruvate, जो pyruvate के अंदर कन्वर्ट होता है। जो एनर्जी प्रोडक्शन की पहली स्टेप है, मीन जो आपका हमने पहले ही बताया था कि जो रेस्पिरेशन इट इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस, इट इज अ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। इसके दौरान जो फूड है उसका स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है, उसमें जो पहली स्टेप होती है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है। ये जो पहली स्टेप है इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये जो प्रोसेस है इसके दौरान जो ग्लूकोज है वो पायरवेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट इज ए कॉमन स्टेप। फिर जो पायरवेट बनता है, अब इसका फेट देखा जाता है आगे कि अब ये फर्दर किधर कौन से पाथ रूट के ऊपर जाएगा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाना है या इनकी अब्सेंस में करवाना है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, तो उसके बेसिस के ऊपर हमारी नेक्स्ट स्टेप चलती है। तो अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस में हम चलते हैं तो देखो आपके लैक्टिक एसिड बन जाता है, जैसे मसल्स के अंदर हमने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं, देयर आर सम कॉमन प्रोसेसेस व्हिच अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन।
ऐसी प्रोसेस कौन सी है जो कॉमन रहती है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनाएरोबिक हो, तो चाहे कोई भी प्रोसेस क्यों ना हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू रिलीज केमिकल एनर्जी फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फूड, ऐसा तो होना ही होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उससे एनर्जी तो जरूर रिलीज होगी। Second point, the use of coenzyme, which act as the carrier of hydrogen to remove the hydrogen from the organic molecule. और इनका खुद का क्या हो जाएगा बोलो, हमने आपको पहले सिखाया भी था हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि बता कोएंजाइम्स क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप के कोएंजाइम्स होते हैं जो कि इनएक्टिव एंजाइम को क्या कर देते हैं, एक्टिव बनाने का काम करते हैं, वो आपके कोएंजाइम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन कैरियर्स कौन आपके एनएडी, और कौन है बोलो आपके एफएडी। एनएडी मींस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एफएडी क्या होता है, फ्लेविन फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये जब क्या करते हैं उसके बाद दे अगेन गेट रीऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इनके जो कॉमन होता है एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, is the use of high energy phosphate compound like the ATP for the energy transfer। ATP जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसके लिए जो हाई एनर्जी फॉस्फेट जो कंपाउंड होते हैं वो कौन होते हैं, वो एटीपी होता है यहाँ पे। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस व्हिच आर कॉमन during both aerobic and the anaerobic respiration. So that all about the respiration and their different types। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो डिफरेंट और स्टेप्स क्या हैं जिनके थ्रू फूड का ऑक्सीडेशन होता है, मींस वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी फर्स्ट, उसके बाद हम क्रेब्स साइकिल देखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन देखेंगे। So that all about the respiration and their different types, means the aerobic or the anaerobic respiration। Thank you।